what? P by H whole square. P by H whole square. And H square by H is 1. Now P by H is a formula of sine. And this is a formula of cos is equal to 1. आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Sine square plus cos square is equal to 1, right? And this will give you two sub-identities, which is sine square theta equal to 1 minus cos square theta. This is the first one. And second one is cos square theta equal to 1 minus sine square theta. Clear है बेटा? बोलो. Similarly, first we have divided throughout by h. So we'll get this identity, number 1. And if we divide throughout by b square, so you will get another identity. अगर मैं इसको b square by b square, h square by b square. Now this become p by b whole square 1 is equal to h by b whole square. Now what is p by b beta? What is p by b? It is tan square theta plus 1 and h by b is sec theta. Sec square theta. So another identity we have, number 2, this is tan square theta plus 1 is equal to sec square theta. Yeah, 1 plus tan square theta is equal to sec square. Again, this will give you two identities. First one is sec square theta minus tan square theta is 1. Another one is tan square theta is equal to sec square theta minus 1. Clear beta? So we have divided throughout by h square by b square. Now the third one is divided by p square plus p square by p square is equal to h square by p square. Now p square by p square is 1. P by p. P by p is cot theta. So this become cot square theta. H by p is cosec. So this become cosec square theta. This is the third identity. And again, this will divide into two subcategories, sub identities. So actually we have 9 identities related with this Pythagoras theorem and these sides beta. Right? So these were the basics you have done in the class 10th, I think. Other than this, you have learned that is extra. But what is required in class 11th? This. And one more thing, I think you have learned this thing. What is sine 90 degree minus theta? What is sine 90 minus Cos theta? theta. Cos theta. How and why? Can anyone see? हमने ये लर्न किया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो इसका रीजन है, देखो कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया. सो नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? sin 90 minus theta is equal to cos theta. You have learned this identity, but the reason behind this you will learn this year. अभी आपने 10th तक आपने शायद ये लर्न किए सिर्फ, अब इसका रीजन आपको पता चलेगा. राइट बेटा? ऑल दीज थिंग्स यू हैव, आई थिंक यू हैव डन. और ये प्रूफ और ये डेरिवेशन भी आपके शायद 10th के सिलेबस में थी या नहीं थी? यस बेटा. बेटा आप लोगों ने किया, ये सब नहीं किया? Sir, complementary
is started with angles. So angle means what, beta? Suppose this is a line. Let it be O and this is A. This is known as initial side. Initial side. Now this line move upward and stop here. This is known as terminal side. So this initial side, now इसको नाम दे दिया OB. So from OA to OB, whatever the inclination, this is known as angle. This is known as angle. Right? And if we are moving from this point, if we are moving anti-clockwise, this is known as anti-clockwise. Anti-clockwise. So in anti-clockwise direction, this is known as positive angle. This make positive angle. Right? And if we are moving clockwise, if we are moving clockwise, this is known as clockwise. So in trigonometry, it is negative. It is negative, beta. Right? This O is known as vertex. Clear, beta? Bolo. If we are moving towards the anti-clockwise direction, it is positive angle. And if we are moving clockwise, then it is negative angle. Right? Yes, sir. Suppose normally, see, this is OA. This is move this way. Now you know this angle is what? 90 degree. Right? Then this is shifted to, this is B. Then this is shifted to here, B. This become 180. 180. Now again moving, this become 270 बेटा. 270. यहीं से काउंट करेंगे and complete कर दो इसे. Now it become 360. Initially we start with 0, 0 to 90, 90 to 180, 180 to 270 and 270 to 360. So this is known as one complete rotation. So in one complete rotation, angle is 360, right? Angle in a one revolution, one complete rotation is equal to 360 degree. ये ध्यान रखना बेटा. ठीक है. अब ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. नेक्स्ट इज सिमिलर वे बेटा. We are moving this way beta. So this is what? Minus 90 degree. Again, we have reached to here. Now this become minus 180 degree. Right? And again, this way, this become minus 270. And finally, it is minus 360. So clockwise is giving you negative angle and anti-clockwise giving you positive angle. Is this clear beta? Bolo beta. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Now, next thing is measurement. अभी मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया डिग्री बिकॉज डिग्री यू हैव डन इन क्लास 10th. सो मेजरमेंट दो पार्ट है. फर्स्ट इज डिग्री. तो पहले मैं आपको डिग्री बताऊंगा. नोटेशन, डिग्री का नोटेशन क्या है? डिग्री, डिग्री notation. If I am saying 5 degree, it means 5 and superscript with a dot. मतलब small circle आप यू कह सकते हो. This is the notation of degree बेटा. Writing the superscript zeros
a small zero, और क्या कह सकते हैं इसको, small circle. This is known as the notation or indication of degree sign. Right? Next देखो बेटा, this degree divided into two sub measurement angles. Degree divided into minute and seconds. This is divided into two sub angles. Degree के sub angles है ये. Minute indicated by single dash, superscript single dash. Second is superscript double dash. This is the notation. Right now, 1 degree we have 60 minutes. 1 degree divided into 60 minutes, and 1 minute divided into 60 seconds. Right? So basically 1 minute is what? It is the 60th part of degree. What is the 1 minute? Is the 60th part of degree. That is 1 minute equal to 1 by 60 degree. Next is, again, what is 1 second? This is 60th part of minute. That is 1 second is equal to 1 by 60 minute. Now, this is equal to what in degree? 1 second is equal to 1 by 60th part of minute. Now convert this. So this will give you 1 what? by 3600. 3600. So 1 second is what, beta? 3600 part of a degree. Clear, beta? So these two things, minute and second, this year you are learning. Is this clear, beta? Yes, sir. Till here it is clear, beta. Please reply. देखो trigonometry. Yes, sir. Whatever trigonometry you will done in class 11, that will remain throughout the life till you will learn mathematics. आप जो 11th में पढ़ोगे अब आप जो trigonometry, वही आपकी लाइफ लॉन्ग यूज होनी है. टोटल से आपका वही यूज होना है बेटा. ठीक है? इज देयर एनी डाउट? और ये जो रिलेशनशिप है ये ध्यान रखने बेटा आपको सबको, क्योंकि ये सब 1 मार्कर क्वेश्चन है. इसमें बहुत सारे, मैं किसी भी लैंग्वेज में कैसे भी पूछ सकता हूँ. मैं ये 1 मार्कर पे फोकस इसलिए ज्यादा करता हूँ बेटा, द न्यू पैटर्न है वो 1 मार्कर पे ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि जो स्ट्रेट अवे 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन है, 5 मार्कर क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर लोगे. ठीक है ना? आपको जो प्रॉब्लम आएगी या आप कहीं पे भी कुछ फेस करोगे, अदरवाइज यू विल गेट फुल मार्क्स बेटा. बट आपको जो फुल मार्क्स से रोक सकता है वो हो सकते हैं 1 मार्कर क्वेश्चन. सो इन चीजों पे फोकस करो. इसीलिए मैं आपको इस तरीके से करा के फोटोज भी सेंड करता हूँ. अपने नोट्स बनाओ, अपने आप क्वेश्चंस क्रिएट करो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन मेक फॉर 1 मार्कर. दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, बिकॉज राइट नाउ वी डोंट हैव एनी बुक जो 1 मार्कर के इतने सारे क्वेश्चन बनाती है. आप कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओ, खुद क्वेश्चन फॉर्म करो. राइट? मैंने यहाँ पे बना दिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मिनट. तो मिनट इज व्हाट इज द, इट इज द 60th पार्ट ऑफ अ डिग्री. सेकंड इज व्हाट? 60th पार्ट ऑफ मिनट. अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज सेकंड इन टर्म्स ऑफ डिग्री? What is second in terms of degree? Either you can write 1 second is equal to 1 by 3600 degree, or you can write the 3600 part of a degree is known as the second. Whichever way you can present better. And this is the value, 1 minute equal to 1 by 60 degree and 1 second equal to 1 by 3600 degree. So किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं. What are the names of sub angles of degree? What are the names of sub angles of degree? It is minute and second. Anji beta. Sir, if we are saying that a minute is 1/60th of a degree, can we say degree is equal to 1 hour? Degree. 1 degree. Yes, sir. beta. 1 degree. 1 degree equal to 1 hour.
Yes, This sir. is you are asking beta. Yes, On sir. what basis you are saying beta, बताओ. So because a minute is 1/60th of an hour also. 1/60th of an hour. तो आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 60 मिनट. नहीं बेटा, यहाँ पे गड़बड़ है. नो, आपने ये अभी वो टाइम वाला नहीं है. ये आप जो मिनट और सेकंड ले रहे हो बेटा, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दैट टाइम एंड जो हम टाइम पढ़ते हैं मिनट एंड सेकंड. आपका अगर आपको 1 मिनट कंप्लीट करना है तो वहां पे देखो, इफ यू आर, यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल होती है, एक बड़ी होती है, और एक आपकी जो मूव करती है सेकंड्स. यहाँ पे 3 नीडल्स होती है. वी है राइट बेटा. इन सब से अलग मीनिंग निकलता है इसका बेटा. वो क्वेश्चन जब हम करेंगे तब आपको क्लियर होगा. ठीक है. अभी इस रिलेशन से मैं ये कुछ नहीं कह सकता कि 1 डिग्री इक्वल टू 1 आवर बेटा. 1 डिग्री तो बेटा ये हुआ. देखो आपने जो ये बनाया, अगर आप इन टर्म्स ऑफ ये लेते हो, दिस इज द सेंटर, दिस इज 1 डिग्री बेटा. सपोज करो ये मेरा 1 डिग्री, दिस इज द ओनली 1 डिग्री. तो ये एक 1 आवर कैसे हो सकता है बेटा. ठीक है. अभी आप आएगा बेटा, अभी रुको आप 2 मिनट. अभी तो ये बेसिक्स हैं एंड दीज आर जस्ट द एंगल मेजरमेंट. और वहां पे क्या टाइम मेजरमेंट है बेटा. वो दोनों में डिफरेंस है. अभी ये ध्यान रखना बेटा. But time is a product of these degree collection only. यस यस, बट दैट कलेक्शन इज व्हाट बेटा. वो कलेक्शन क्या है वो अभी थोड़ा सा रुको आप थोड़ा सा जल्दी आगे पहुंच गए. ठीक है. ये कहां पढ़ा आपने. ये यू हैव लर्न, यू हैव सीन दिस थिंग No, बेटा. sir. No, sir. ये Sir, आप I रिलेट just कर रहे हो ना. made it. Yes, आपने sir. इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया. व्हाट 60 मिनट और 60 डिग्री. 60 minutes. तो आपने इसे कन्वर्ट कर दिया. अगर सपोज करो आई हैव 20 डिग्री, आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू मिनट्स. तो व्हाट आई नीड टू डू बेटा, 20 डिग्री इनटू व्हाट, 1 डिग्री इक्वल टू 60. So I need to multiply with this 60, that this will make a minute. So this is become 1200 minute. अब देखना क्या बेटा, 20 डिग्री become 1200 minute. तो 1200 का मतलब क्या हुआ, 20 डिग्री मूव करेगा अगर ये स्मॉल निडल एंड दिस वन, that become what बेटा, 20 hours बेटा. नहीं, 20 hours. ठीक है ना. तो ये वाला जो आपका कंक्लूजन निकला है वो रॉन्ग है बेटा इस सेंस के अंदर. ठीक है. अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तब करते हैं. थोड़ा सा रुको, इस पे क्वेश्चन है बहुत अच्छे, लॉजिकल क्वेश्चन है, एंड दैट विल चेक योर IQ ऑल्सो एंड इंक्रीज योर IQ ऑल्सो. ठीक है. वो जो टाइम पता चल जाएगा कि आप टाइम पे कितना कॉन्सेंट्रेट करते हो. सिर्फ घड़ी देखना आता है या आपको उसके अंदर के लॉजिक्स भी पता है नहीं पता. ठीक है. ये भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. एंड CBSE में नहीं है बेटा, JEE में क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस वन. बट सम कहते हैं थोड़ा डिफिकल्टी लेवल लो है, उसके साथ हम इसे CBSE में भी काउंट कर लें. वी हैव सम क्वेश्चन अप टू द लेवल ऑफ CBSE बेटा. नेक्स्ट इज बेटा द एंगल मेजरमेंट. नेक्स्ट मेजरमेंट इज व्हाट, फर्स्ट इज डिग्री, देन द अदर वन इज जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था बेटा, द मेजरमेंट इज डिग्री एंड अनदर वन इज रेडियन. रेडियन बेटा. सो अब देखो ये क्या बेटा, रेडियन मेजरमेंट. This is a circle I've taken. आपने इससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पढ़े लास्ट ईयर, पढ़े बेटा सेक्टर्स के. इफ दिस एंगल इज थीटा then what is the formula of area of circle? Can anyone? Yes, sir. Area of sector. Theta upon 360 Theta pi r 360 into pi r square. Theta upon 360 degree into pi r Into pi r square.
This is the formula of what? The whole Area circle of or the this sector. sector? Area of Sector. sector. This is A, this is B. So OAB का area है ना बेटा ये? Yes. ठीक है. Now radian measure is what बेटा? Angle subtended. Let it be theta. Angle subtended at the center by an arc of 1 unit length. An arc, this is arc. Arc is denoted by what beta? AB and curve on this. अब पढ़ा बेटा नहीं पढ़ाई बताओ बेटा. बोलो बेटा. Is this Yes. symbol you have done? Arc. Yes. अगर मैं लिख रहा हूं AB और इसको मैंने लेंथ बोल दिया L, तो इसका मतलब समझ में आ गया. AB this curve equal to L. It means this is indicating the length. This measurement. This is indicating, right? So angle subtended at the center by an arc of 1 unit length in a unit circle. What is the meaning of unit circle beta? What is the meaning of unit circle? So a circle whose radius is Circle of- 1 unit. Radius is One. 1 unit. Yes beta, 1 unit. ये center हो गया, radius हो गया इसका, and this arc I have also taken this one. ठीक है बेटा? The angle subtended at the center by an arc of 1 unit length in a unit circle is known as radian measure. Radian Sir, can you repeat radian measure? Hello? Hello? Am I audible beta? Hello? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मेरी वॉइस चली गई थी क्या बेटा? ठीक. This is the definition of a radian measure and denoted by if I am writing 1 radian, so we can write 1 C. This is the notation for radian measure beta. कोई भी angle, if you are writing C on the superscript beta, C superscript, this is known as the radian symbol. And degree का symbol आपको पहले से ही पता है बेटा. कहाँ गया डिग्री का? जैसे मैंने लिखा 1 degree, तो this small circle in superscript indicate the degree symbol, and this is the radian symbol. ठीक है बेटा, बोलो. Yes. बोलो बेटा. क्लियर? अच्छा, सबके पास एनसीईआरटी बुक है इस समय? देखो बेटा. Yes. एवरीबॉडी इज हैविंग ना. सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ. हाँ जी बेटा. सर एक बार रेडियन मेजर रिपीट कर दो. देखो बेटा, ये रिलेट किया है अभी, उसी को और एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे एक बार एक मिनट रुको बेटा, बस आपको दोबारा से करता हूँ. एक बार पेज नंबर 51 ओपन करो बेटा, एनसीईआरटी बुक. ऑल ऑफ यू बेटा, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 51. There they have given you radian measure. So please read this page complete with diagram. चेक करना बेटा डायग्राम को भी.
एक बार रीड करो, 2 मिनट के बाद मैं आपसे बात करता हूं, देखो और समझना इसको कि क्या बोल रहे हैं ये। आई एम रीडिंग दिस ऑल्सो बेटा। There is another unit for measurement of an angle called radian measure. Angle subtended at the center by an arc of length 1 unit in a unit circle is said to have a measure of 1 radian. In figures, तो एक बार figures देखो बेटा, चेक करो, इसमें 1 radian, -1 radian. If we are moving in anti-clockwise direction, then it is +1 radian. If we are moving clockwise direction, this is making a -1 radian. This way they are expressed. We know that, next देखो बेटा, after diagrams, we know that the circumference of a circle of radius 1 unit is 2 pi. Thus, one complete revolution of the initial side subtend an angle of 2 pi radian. ये clear है नहीं clear है, बताओ बेटा। Sir, I think your screen is freeze. I can see the first page only. Is this visible? Sir, no. बेटा एक बार चेक करो, क्योंकि अगर फ्रीज होगा मेरा तो किसी को भी नहीं दिखेगा। Is this visible to someone? Yes, sir. Yes, sir. What is the meaning of these two lines बेटा? We know that the circumference of a circle of radius 1 unit. अगर radius 1 unit है तो सपोज करो मैंने ये ले लिया बेटा 1 unit circle का, so normally circumference is 2 pi r. This is what? Circumference. ठीक है। तो circumference अगर 1 unit radius circle का है तो this become 2 pi, right? So radian is what बेटा? Radian जो मैंने आपको बोला है, radian is basically arc length divided by radius. This is radian बेटा, ठीक है? This is radian. तो आप एक चीज देखो बेटा, this 2 pi r circumference है आपका, इसका 1 unit है, पूरा circumference is 2 pi become, right? And you know this thing बेटा कि एक रोटेशन में कंप्लीट कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। ठीक है बेटा, बोलो। Yes. ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिनोटेड बाय एल बाय रेडियस आर। यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। दिस थीटा, जब मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बेटा, तो इट मीन्स दिस थीटा इज एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इन रेडियन। ये सिर्फ रेडियन में दे रहा है क्योंकि ये रेडियन की डेफिनेशन है। डिफाइन रेडियन, इफ यू राइट थीटा इक्वल टू एल बाई आर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट बेटा। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। क्या था? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ यूनिट लेंथ इन अ यूनिट सर्कल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। दिस इज द डेफिनेशन। सो उसी को मैंने मैथमेटिकल प्रेजेंट किया। सो अगर आपके पास रेडियस r यूनिट है डिवाइड बाय रेडियस, देन दिस इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। देखो आपके पास दिस इज, ये मेरा थीटा, दिस इज एल एंड दिस इज आर। तो आपने यहां से यहां तक मूव किया, दिस डिवाइडेड बाय दिस इज मेकिंग दिस एंगल। So ratio of arc length to the radius is known as this theta, where this theta is, so यहाँ पे क्या हुआ बेटा? कैंसिल,
और ये थीटा अभी तक मैंने पढ़ा था 360 डिग्री. नाउ इट बिकम 2 पाई. 2 पाई वैल्यू आ रही है इसके साथ. तो अब इसके साथ क्या इसको सॉल्व करेंगे, तो दिस इज पाई इज इक्वल टू 180. सो दिस पाई इज इक्वल टू 180. दिस इज अ रिलेशन एंड दिस पाई इज इंडिकेटिंग बिकॉज जब मैं इसे इस फॉर्मूले के तहत सॉल्व कर रहा हूं और अब मैंने ये थीटा लिया पूरे कंप्लीट रोटेशन का. समझ रहे बेटा, रेडियस पूरा लिया तो इस रेडियस से पूरा सर्कल बनेगा. तो सेंटर में सर्कल ये हो गया, सेंटर में एंगल. तो दिस इज 180 डिग्री. ये रिलेशन आया पाई इक्वल टू 180 डिग्री. देखो बेटा इसको बताओ मुझे, और इससे पहले एक बार इसको समझने से पहले एक बार अब ये 2 लाइन के बाद पढ़ो फिर से. We know the circumference of a circle of radius 1 unit is 2 pi. Thus, one complete revolution of the initial side subtend an angle of 2 pi radian. One complete revolution of the initial side subtend an angle of 2 pi radian. जो पाई की फॉर्म में लिखा होगा बेटा, this pi is the indication of radian angle और radian angle. और दूसरा था किसी के ऊपर अगर आपने सी लिखा है तो वो भी आपका रेडियन एंगल है. और अगर विदाउट डिग्री सिंबल लिखा है इसको भी हम रेडियन बोलते हैं बेटा. एक हो गया 1 और एक हो गया 1 डिग्री. सो दिस इज क्लियरली विजिबल, दिस इज ए डिग्री सिंबल. इफ वी आर नॉट मेंशनिंग दिस डॉट या दिस नॉट बेटा, सो दिस इज नोन एज रेडियन ऑल्सो. तो कई बार बुक्स में आपको एनसीईआरटी बुक में भी, रेफरेंस बुक में भी ये तीनों चीजें, पाई इज द इंडिकेशन ऑफ रेडियन मेजर, 1c सुपरस्क्रिप्ट c is the indication of radian measure, and only number in terms of angle is representing again radian measure. तो ये आपके पास 3 नोटेशंस हो गए इसके. आगे देखो बेटा इसके बाद, more generally in a circle of radius r, an arc of length r radius an arc of length r will subtend an angle of 1 radian. कहने का मतलब क्या हो बेटा यहाँ पे, इसका मतलब बताओगे बेटा कोई? More generally in a circle of radius r, an arc of length r. अब वो इसको ले रहे बेटा, देखो रेडियस भी, अगर ये रेडियस है तो आर्क लेंथ ये पूरा हो गया ना बेटा, बोलो. बोलो बेटा. देखो 1 यूनिट से मैंने क्लियर किया था आपको. आप अपने पॉइंट नहीं रखोगे तो मुझे कैसे क्लियर होगा बेटा? अच्छा ये पैराग्राफ पढ़ो पूरा पहले, इससे क्या समझ में आता है वो मुझे समझाओ. Paragraph on page 51. Page 51, last paragraph. More generally, in a circle of radius r, an arc of length r will subtend an angle of 1 radian. इसका मतलब क्लियर हुआ बेटा? अगर Yes. आपने रेडियस Yes, sir. और आर्क लेंथ को सेम कर दिया तो वो मेरी डेफिनेशन थी बेटा, किसकी बेटा थी? रेडियन मेजरमेंट की. ये मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ मैंने वर्ड यूज किया 1 यूनिट. अगर आप बोलोगे आर्क लेंथ ऑफ r यूनिट एंड इन r रेडियस ऑफ r यूनिट, देखो यहाँ पे क्या, बाय एन आर्क ऑफ r यूनिट लेंथ इन ए यूनिट सर्कल की जगह लिखोगे इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट, तो वहां से भी आपका रेडियन मेजर ही आएगा बेटा. ठीक है बेटा. आगे आओ. इट इज वेल नोन दैट इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. इस लाइन को अंडरलाइन करो बेटा. इट इज वेल नोन दैट इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. इसका मतलब बताओ बेटा क्या है? ये आपने 10th में कहीं पढ़ा होगा, देखो ज्योमेट्री में. बताओ भाई. That if arc length is equal, then the angle of radian. सॉरी आपकी वॉइस गई बेटा. हेलो. So that if the length of arc is equal, then the radian angle produced at the center will also be equal. इक्वल.
ठीक है ना। ये आपने कोई थ्योरम भी पढ़ी होगी, देखो बेटा, थ्योरम है मेरे ख्याल से 10th में, मुझे नहीं पता कितनी एलिमिनेट हुई थी लास्ट सेशन में, बट लेकिन ये एक थ्योरम भी है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बेटा अब ये लाइन याद रखना बेटा, दैट इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो इसको हम अभी एग्जांपल के साथ जब क्वेश्चंस आएंगे ना तब मैं बताऊंगा, अभी आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लो। बस ये ध्यान रखना कि मैंने ये डिस्कस किया, ये वर्ड हमारा, ये लाइन हमारे पास पहले आ चुकी है। इक्वल आर्क्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। नाउ सिंस इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r an arc of length r subtend an angle whose measure is 1 radian, an arc of length l will subtend an angle whose measure is l by r radian। अब ये इस फॉर्मूले पे पहुंचे बेटा, देखो जैसे ही आपने यहाँ पे लेंथ और रेडियस को सेम कर दिया तो वो आपका 1 रेडियन की डेफिनेशन हो गई आपकी। Thus, if in a circle of radius r, an arc of length l subtend an angle theta radian in the center, we have theta equal to L by r L equal to r theta. This is the formula we have reached to this formula beta using the radian concept beta. ठीक है, उसके बाद हम एक रिलेशन पे ये आए थे बेटा, this is relation between radian and degree, which is pi equal to 180 degree. This is degree. This implies 1 radian because this is 1 pi beta, and pi अपने आप में आपको बता रहा है कि ये रेडियन है। तो now 1 radian is equal to 180 by pi degree, right? तो जैसे मैंने लिखा आपको 1 रेडियन की वैल्यू ये है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 रेडियन, देन 5 इज मल्टीप्लाइड बाय दिस वन। कन्वर्ट 5 रेडियन इनटू डिग्री, so we need to multiply 5 by 180, 5 into 180 by 5 डिग्री, तो वो डिग्री में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, दिस इज द रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री। नाउ व्हाट इज डिग्री टू रेडियन? डिग्री टू रेडियन, this is 1 degree equal to pi upon 180. Now it is radian. This is the relation, this is the formula. एक तरीके से समझ लो, मैंने आपको 1 apple की कॉस्ट दे दी। If they are asking for 5 apple, you need to multiply with 5. If they are asking for 20 apples, you have to multiply by this. आपको ध्यान रखना what they are asking. Is they are asking radian to degree or degree to radian? If they are asking degree to radian, so convert 45 degree into radian, so that is your answer after multiplication with pi by 180. और अगर रेडियन में पूछ रहे हो तो 1 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 5 डिग्री 5 रेडियन इज इक्वल टू 5 into 180 डिवाइड बाई पाई इज द डिग्री मेजरमेंट। और आगे सिंप्लीफिकेशन मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, इज दिस क्लियर बेटा? ये 2 रिलेशन आए हमारे पास अभी। Yes, और एक ये फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, दिस इज द रिलेशन जिसके ऊपर क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, और एक ये फॉर्मूला में। ठीक है, तो आज हम इसमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट यहां तक करते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है कुछ बच्चों को भी ये समझ में नहीं आया है, तो कुछ बच्चे जिनको समझ में नहीं आया बेटा, इसको एक बार आप और रीड करोगे और नेक्स्ट क्लास में मुझे यहीं से स्टार्ट कराओगे अगर समझ में नहीं आया। ठीक है, आपको एक तरीका समझ में नहीं आएगा, मैं अपनी तरफ से दूसरा तरीका कोशिश करूंगा, क्योंकि लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। बस ये ध्यान रखना, ये समझोगे तो आगे आपको ट्रिग्नोमेट्री, मैं चाहता हूँ 11th की ट्रिग्नोमेट्री आपको लाइफ टाइम रिमेंबर रहे, सो दैट कि कोई आपको ये ना कह सके कि आपने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से नहीं पढ़ी। समझ रहे हो मेरी बात बेटा? तो अपने डाउट्स रेडी रखना टिल हियर, जो कॉन्सेप्ट वी हैव डन टुडे। राइट बेटा? बोलो बेटा, रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज इसको पढ़ना बेटा, और एनसीईआरटी की पेज नंबर 51 तक पढ़ना। बेशक अभी ज्यादा मत जाओ, और 52 का फर्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो आप, बट इससे ज्यादा आगे मत जाना। अगर आपको आता है तो आप आगे प्रैक्टिस कर सकते हो, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन यहां तक समझने की कोशिश करना कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज रेडियन, बिकॉज डिग्री आपको पहले से पता है।
ठीक है बेटा, बोलो आप Yes, इतना sir. करना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड होल्ड बेटा, डोंट गो। यस, नाउ यू कैन लीव बेटा। Sir, Argentina presenter.